اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل صاحب جو کہ المکی المدنی کمیونٹی ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. ان سے ہم تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں اور ان کے سفر کی شروعات اور ان کی جو اس ہاسپٹل کے اندر جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس حوالے سے گپ شپ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد نبی المی و آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سر یہ جو میں چونکہ ڈاکٹر ہوں اور ڈائریکٹ پیشنٹ کے ساتھ ایک انٹریکشن ڈیلی ہوتا ہے اور میزریز ایسی ہیں کہ لوگوں کو صرف روتے ہوئے دیکھا، ایکسیس نہیں ہے، ڈپرائیوڈ ہیں اور آؤٹ آف پروپورشن جو ہے نا ہماری فیسلٹیز ہیں، جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر. بالکل. پھر یہ جو علاقہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ لاہور کا پاورٹی اسٹرکن ایریا کہہ سکتے ہیں. یہ جو تاج پورہ اور تاج پورہ ہو گیا، تاج پورہ کے سراؤنڈنگ لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں ہے نا سر، ابھی ڈیولپ تو نہیں ہونا. ہم لوگ چونکہ یہ المکی المدنی کمیونٹی ٹرسٹ ہم نے بنایا 2011 میں. اس کے پیچھے جو ریشنل یہ تھا کہ ہم تقریباً تمام دوست تھے اور اس میں یہ تھا کہ سیلف سسٹین کوئی کوآپریشن بنا دیا جائے. تو وہ اپنی سوچ یہی ہوتی تھی کہ یار لوگوں کو ہر چیز میں ضرورت ہے. تو ایک چیز جس پہ ہم نے فوکس کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے ہیلتھ پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. اور 2013 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی پروڈیوس کی. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے توسط سے ہم لوگ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے جی ایم نے ان سے ایک اچھا لائزن ہوا تو ہمیں کچھ ہیپیٹائٹس سپورٹ پروگرام کے نام سے ہم نے شروع کیا. اور نہ صرف یہ کرنا شروع کر دیا بلکہ ہم نے اس وقت ایک اسٹریٹجی ایوالو کی، ون ڈونر ون پیشنٹ. ون ڈونر ون پیشنٹ. اس کے لیے کیمپس وغیرہ کرنا شروع کیے کیونکہ ہمارے کیمپ میں 4 سیگمنٹ ہوتے تھے: ڈائبٹیز، ہیپیٹائٹس، ٹی بی اور آئی کیٹریکٹ. اور یہ کیمپ آپ کا صرف اسی علاقے میں؟ نہیں سر، یہ مطلب ہے کہ بیسیکلی یہ میں بتاتا ہوں کہ میرا پورا فوکس، بلکہ ہماری پوری کمیونٹی کے جتنے بھی ممبرس تھے ان کا جو فوکس تھا وہ یہی ایسٹرن لاہور ہے. ایسٹرن 45 لاکھ کی آبادی ہے سر. 4.5 ملین کی آبادی جی سر اس ایریے کی ہے. وہ پاپولیٹڈ اگر دیکھا جائے 1/3 آف دی پاپولیشن آف لاہور ریزائڈز اوور ہے. تو میں نے سر وہ اتنی میجربل سٹوریز تھی کہ اب بتا نہیں سکتا. اللہ کا سب بہت بڑے سامنے میں ایک احسان عظیم یہ تھا کہ جو کور کمیٹی کے ہمارے جو ممبر بنے سارے کے سارے بڑے کائنڈ ہارٹیڈ ہیں. وہ ساروں کا تعلق اسی ایریا سے ہے. ہم نے ہیپیٹائٹس پہ کام کیا. ہیپیٹائٹس پہ بہت بڑا کریڈٹ پاکستان آٹو اسپیئر پارٹس امپورٹرز ڈیلر ایسوسیشن کو ملتا ہے، پاسپیڈا کو. ہم لوگ ان کے معاون بنے، انہوں نے سپورٹ کیا اور اس ایریا میں پہلا لیور سینٹر ہم نے بنایا جہاں لیور اور گیسٹرو سے ریلیٹڈ تمام چیزیں فری آف کاسٹ مل رہی ہیں. ہم نے آج تک اس ٹرسٹ سے ذاتی طور پہ ایک پائی کا بینیفٹ نہیں لیا اور دن رات لگے ہوئے ہیں. یہاں میں 2 چیزیں کلیئر کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے کرونک کڈنی ڈیزیز. ٹھیک. کرونک کڈنی ڈیزیز کیا ہے کہ آپ کا جو کڈنی ہے کسی نہ کسی لیول پہ وہ ڈسٹرب ہے، ٹھیک، تھوڑا یا زیادہ. تو پھر ہم نے سوچا کہ ڈائلسس پہ کام کیا جائے. میرے ذمہ کام لگا کہ اس کی جنرل اسٹیٹسٹکس اکٹھے کرو. جب اسٹیٹسٹکس اکٹھے کیے تو امریکہ جیسے سویلائزڈ کنٹری میں صرف 20 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، 20% لوگوں کے بارے میں جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے. 80% وہاں بھی لوگ جو ہے نا پریشان ہیں جو یہ انہی ڈائلسس کی وجہ سے. ہر 10ویں بندے کو پاپولیشن میں 10ویں بندے کو کسی نہ کسی لیول پہ کڈنی ڈیزیز ہے. اس کا مطلب کو 2.25 کروڑ پاکستان میں 24 کروڑ کی آبادی ہے، تو 10% تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور ایک شوگر جب بڑی تو بلڈ پریشر بڑھا اور یہ اسی طرح سے کڈنی پہ چلا گیا. ڈائریکٹ جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی. آپ کا ڈریم کیا ہے کہ کتنا آپ ٹارگٹ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کتنی ڈائلسس مشینیں آپ یہاں پہ ہینڈل کر سکتے ہیں اس بلڈنگ میں؟ دیکھیں جی اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایزیلی تقریباً کو 40 مشین جو ہے نا، اور ابھی کرنٹلی جو آپ کے کرنٹلی ہمارے پاس 16 ہے. اس کا مطلب 24 مشینیں تو رائٹ ناؤ بھی اگر برڈن آ جائے تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں.
हमारे साथ इस वक्त एक बच्ची इकरा जिसके डायलिसिस हो रहे हैं, तो इकरा से थोड़ी सी तरह गपशप करते हैं। तो क्या हाल है मेरे बेटे, ठीक हैं आप? इकरा कब से हो रहे हैं आपके डायलिसिस? 2023 में स्टार्ट हुए थे, अब तो 2 साल 2 साल से आपके डायलिसिस। तो आपकी फैमिली में किसी और को भी भाई है? को था भाई को था, उनको भी क्या डायलिसिस करवाते थे? डायलिसिस 1.5 साल उसने डायलिसिस करवाए हैं। उसके बाद मम्मा ने उसको किडनी दी 2019 में। मशीन्स जो हैं आपकी, ये डे नाइट मतलब 2 ये शिफ्टों में चल रही अभी होती इस हैं? वक्त दो शिफ्ट में चला रहे हैं, हम इनको 3 शिफ्ट में भी चला सकते हैं। तो रिसोर्सेज हों, हम इंशाल्लाह, हम अगर रिसोर्सेज हो तो इजी मशीनों के साथ हम हर महीने तकरीबन 1500 डायलिसिस कर सकते हैं इजी। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह जी करेंगे। इंशाल्लाह। अभी हमारा जो नया एक्सटेंशन ब्लॉक है वो अभी आपने ये देख भी रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड, इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। माशाल्लाह इस इलाके के लिए तो ये बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, इसमें इस हॉस्पिटल में डायलिसिस के अलावा और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड हो? तो इसके 3 मोटर्स हमारे सामने थे। क्यूरेटिव, कि जो भी डायलिसिस का पेशेंट हमारे पास अप्रोच करे हम उसको फ्री ऑफ कास्ट डायलिसिस दे सकें। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे जितना डायलिसिस है 100% फ्री वो है? 100% बिल्कुल फ्री ठीक। है, 100% फॉर ज़कात पेशेंट्स। ज़कात पेशेंट फ्री है? हमारी एक ये वो प्रोग्राम है ना जो, तो हमने इसका नाम रखा था कीप। इसके 6 कंपोनेंट हैं। कीप का क्या मतलब है जी? किडनी अर्ली एवेल्यूएशन प्रोटेक्शन प्रोग्राम। हमने इसका मोटो है कि गुर्दे को डायलिसिस से बचाना है। तो हम हाई रिस्क पॉपुलेशन को स्क्रीन करते हैं, देन दैट पेशेंट वो जो है ना हवाले हो जाता है हार्ट स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, ठीक है। और इसी तरह से ये जो न्यूट्रिशनिस्ट, ये भी और ये हमारे पास सारी होते की हैं। सारी ये फैसिलिटीज सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट भी यहाँ ओपीडी पे का है, नाम ही कीप, न्यूट्रिशनिस्ट भी यहाँ पे है। ये सारे हैं। ठीक। हमारे ओपीडी का नाम ही कीप ओपीडी है। तो उसके लिए हमने वो जनरल ओपीडी भी शुरू कर दिया है। तो उसमें तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमारे पास पेशेंट होते हैं। एमरजेंसी चल रही होती है, 24 आवर चल रही होती है एमरजेंसी यहाँ पे कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शहबाज साहब बैठे हुए हैं, जो कि इनको हेड करते हैं। तो डॉक्टर साहब से थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। जी, शुरू से जब से ये डायलिसिस सेंटर स्टार्ट हुआ है, मैं यहाँ पे अपनी इत्माद बतौर गुर्दा स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो दे रहा हूँ। और ये 4 डायलिसिस मशीन के साथ इसका आगाज़ किया गया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 16 डायलिसिस मशीन है और हम पेशेंट्स को 2 शिफ्ट्स में डायलिसिस की फ्री सहूलत मुहैया कर रहे हैं। डायलिसिस से पहले जो चीज़ें हैं वो हम इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुगर ब्लड प्रेशर ऐसे पेशेंट का जो शुगर है डायलिसिस के पेशेंट में जैसे ही गुर्दे का फंक्शन कम होना शुरू होता है तो शुगर बल्कि उनकी कम होना शुरू हो जाती है, तो दवाइयों की ज़रूरत उनको कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जो दवाई यूज़ कर रहे हैं उनको दवाई को मेडिसिन को कई दफ़ा हमें बहुत कम डोज में या कई दफ़ा बंद करना पड़ता है, तो उसको देखना पड़ता अच्छा है। डॉक्टर साहब, जैसे ये सुनने में आया कि बहुत से डायलिसिस जो पेशेंट होते हैं, तो डायलिसिस मशीन की वजह से उनका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो जाता है। मशीन से जो आम मिसकंसेप्शन ये है कि मशीन से शायद वो फैलता है, मशीन से नहीं फैलता। डायलिसिस टेक्नीशियन ने या अगर जो स्टाफ नर्स है, अगर वो जब डायलिसिस करता है, अगर उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए या उसने सफाई का ख्याल नहीं रखा तो उससे स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। उसके लिए हमने एक अमल अपनाया कि पहले हमने डायलिसिस टेक्नीशियन जो है वो भी क्वालिफाइड है, उनको पहले से भी इल्म है, लेकिन हमने उनको मज़ीद एजुकेट करने के लिए हमने ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं वहाँ पर भी, और उसके अलावा भी लाइव भी उनको डेमो दे के वीडियो वगैरह बना के वो भी शेयर करते रहते हैं। और फिर साथ हम कोशिश करते हैं कि इंटरनल ऑडिट भी करते हैं साथ में। अचानक से कभी उसको सरप्राइजिंगली ऐसे करते हैं कि टेक्नीशियंस जो है वो उसको ऑब्जर्व हम कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई अगर पेशेंट वॉक इन होता है तो आगे तरीका कार आपका है क्या पेशेंट्स को लेने का? सर एक तो ये हमने ये तरीका रखा है कि हम किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं है हमारे यहाँ। पेशेंट आया, वॉक इन हुआ, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट ने उसको एवेल्यूएट करा। जिस वक्त नेफ्रोलॉजिस्ट ने उसको एवेल्यूएट कर लिया और उसको कह दिया कि दिस पेशेंट नीड्स डायलिसिस, तो हमारे पास एक बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है ज़कात वैल्यूएशन का, ठीक, कि हम वो उसी वक्त पेशेंट जो है ना, हमारा जो एग्जेक्टिव एडमिन मौजूद होते हैं वो अपने तरीके से उसको एवेल्यूएट कर लेते हैं। एवेल्यूएट करने के बाद वो जो परफॉर्मा होता है वो हमारे मुफ्ती साहब के साथ शेयर हो जाता है और वो बता देता है कि दिस पेशेंट कैन गेट ज़कात और नॉट। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आतिफ साहब जो कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, तो इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब बताएं ना थोड़ा सा ज़रा अपने। अच्छा, इस वक्त आपको जैसे पता है हम अल-मक्की अल-मदनी डायलिसिस सेंटर में खड़े हुए हैं। यहाँ हमने ऑपरेशन थिएटर जो है बेसिकली उसकी इनॉग्रेशन करनी है, स्टार्ट करना है। जो हमारे टारगेट्स हैं बेसिकली वो डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको डायलिसिस के लिए फिस्टुला सर्जरी चाहिए होती है। तो हमारा गोल ये है कि वो डायलिसिस तो डेफिनेटली हम ग्राउंड फ्लोर पर स्टार्ट हो चुका हुआ है, मगर फिस्टुला भी हम पेशेंट्स का यहाँ पे ही बनाएं
और यहाँ पे ही बनाएं और नीचे वो डायलिसिस करवाएं। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब अभी जो फस्टूला के लिए जो पेशेंट है वो किसी और जगह से डेफिनेटली वो किसी और सेटिंग्स में हम रेफ़र कर रहे हैं, या पेशेंट्स बाय देयर ओन विल कहीं और से बनवा के तो हमारे पास आते हैं। बेसिकली आई हमारा कोई प्राइमरी प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक। हमारी देखा ये गया है कि जो डायलिसिस की जो 85% पॉपुलेशन है दे आर आइदर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव। मकसद क्या है कि ये जो डायलिसिस पेशेंट है हम इसको एज ए होल मैनेज कर रहे हैं, नॉट एज ए पार्ट। डायलिसिस कर देना वो बड़ी बात नहीं है। हमारा जो कीप मैंने भी पहले बताया KEEP किडनी अर्ली इवैल्यूएशन प्रोग्राम, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने उसके गुर्दे देख लिए, तो ये बुनियादी तौर पे आम पब्लिक के लिए जैसे होता है ना कि आए आंखें चेक कराएं, नो दिस इज नॉट, ये वो हमारे पास एक एक्सेसरी फैसिलिटी है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर तहरीम बेग जो कि इनके फिजियो डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। तो कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं? हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स लाइक शैटिका, आर्थराइटिस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बैक पेन और इन सब को हम डील करते हैं। तो जो डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है? जी, जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं लाइक उनकी हम लोग मोबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, फिर उनको उनकी चेस्ट को हम लोग उसकी प्रिकॉशंस करते हैं कि उनकी चेस्ट को ऑस्कल्टेट वगैरह करते हैं, उनकी ड्रेनेज करवाते हैं, ये चीज़ें हम लोग उसकी इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि उनके बेड सोर्स का इनको बेसिक हमारा पर्पज़ ये होता है कि उनकी मोबिलिटी को हम लोग प्रमोट करते हैं। हम इसमें एड ऑन सर्विसेज देते हैं लाइक अगर किसी को CVS का इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं हम उनको ये सर्विसेज भी फिजियो की भी प्रोवाइड करते हैं डायलिसिस के पेशेंट को। ठीक। और ये जो उनकी जिस तरह डायलिसिस फ्री है ये भी फ्री होता है? हाँ जी, ये भी फ्री होता है, फ्री ऑफ उनके लिए। कॉस्ट प्रोवाइड? जी, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी? हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी है, उसमें हम हर तरह के अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड एवेल्यूएशन जो किडनी डिजीज़ में आप ये कह सकते हैं कि एक बुनियादी चीज़ है, क्योंकि बहुत 10% केसेस में जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं उसमें एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें गुर्दे की एक नाली होती है, उसे आर्टरी, रेनल आर्टरी, वो तंग हो जाती है, स्टेनोसिस कहते हैं, और वो ट्रीटेबल होती है। अगर हम किसी उसको वैल्यूएट कर लेते हैं, ट्रीट कर देते हैं, तो उस बंदे को सारी ज़िंदगी के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई से निजात मिल सकती है। अगर बरवकत इलाज हो सकता है तो हम गुर्दे को बचा भी सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं उनको पता होता है हमें ब्लड प्रेशर है, वो उससे हमारे पास ज़्यादा बात है तो वो किसी और सिम्टम के साथ आ रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाए कि भाई उसकी जो है ना वो किडनी की सूरत हाल कैसी होती है। जो पेशेंट ज़कात पे नहीं जा सकते हैं तो फिर हम उनको ऑप्शन दे देते हैं कि भाई या तो फुल पेमेंट कर दो या जितने भी आपने कर दे, तो फिर वो फुल पेमेंट 5500 हमने रखी होती है जो कि तमाम एक्सपेंसेस को कर लेती है। अदरवाइज फिर से कहते हैं कि जितना फिर वो जितनी इस्तात है उसके मुताबिक है आपका फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान में यही है ना कि एक तो हमारी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग है, अभी हमारे पास अभी मैंने कहा कि हम 40 मशीन्स को टोटल स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारे पास जितना भी स्टाफ है हमने इसको एकेडमिक पर्पस के लिए प्रोड्यूस करना शुरू। बहुत अच्छी। और भला हो हम जैसे साकिब साहब जैसे जो ग्रेट लोग जो होते हैं वो विजन देते हैं, उसी विजन को लेके हमारी जो कम्युनिटी जो कोर कमेटी है उसमें ये है कि हम लोगों को इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट ये हेल्थ एजुकेशन, ये अलाइड हेल्थ साइंसेज देंगे। 2 साल तक वो फ्री पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद दे विल हैव टू रिटर्न बैक। इस वक्त मेरे पीछे ईस्टर्न लाहौर का एक इलाका ताजपुरा है और आज हमने यहाँ पे अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर को विज़िट किया है। यकीन कीजिए कि इस इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इनके फ्यूचर प्लान्स बहुत ज़बरदस्त हैं और अभी भी बहुत से पेशेंट्स आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। आइए इनका साथ दीजिए।